So hello everyone. So let's do top 25 MCQs on Edmund Spencer, which is like most expected questions from your TGT, PGT and SET exams. Okay, it is also equally useful for your NET exams as well. So let's start. तो ऑलरेडी मैंने आप लोग को एडमिन स्पेंसर का एक ब्रीफ और बेसिक क्वेश्चंस करवा दिए थे और ये मैंने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है निकाले हैं आप लोगों के लिए. सो लेट्स start with the first question. Okay, so when we talk about Spencer, he's best known for which of the following works? Is it Paradise Lost, The Fairy Queen, The Rape of the Lock, or Utopia? So we know that Edmund Spencer is equal to Fairy Queen. He is always known with his work, The Fairy Queen, which is based on Elizabeth the First, Queen Elizabeth the First. Okay, so let's move further. Question number 2: in which year was Edmund Spencer born? Edmund Spencer was born in the year 1552. Okay, we'll also talk about his death year, and there are many options which is like almost very similar when we talk about 1558, 59, or 65. But you should remember that it is 1552 when Edmund Spencer was born. Next question. Spencer is often referred to as a poet's poet. So he's often referred to as poet's poet, prince of poets, bard of Avon, or poet laureate. So of course he is referred to as poet's poet, and it is the name is given by Charles Lamb. So next question. Spencer's major patron was. Who was his major patron? Was it Sir Philip Sidney, Lord Burghley, Walter Raleigh, or Ben Jonson? So it is Walter Raleigh. Okay, so he was his major patron, जो उनको follow करते थे. Which monarch was a fairy queen dedicated to? कौन सी monarch है जिसके लिए fairy queen है जो है वो dedicated था? We all know that it is Queen Elizabeth the First. Do not get confused with Queen Mary, King James First, King James First, King Henry the Eighth. We already knew that it is about fairy queen. Fairy queen है. तो किंग जेम्स फर्स्ट और किंग हेनरी द एट तो चले ही जाते हैं, तो दो ऑप्शंस जिसमें बचते हैं क्वीन मेरी और क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट में से आपका आंसर है क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट. हाउ मेनी बुक्स ऑफ द फेरी क्वीन वेर पब्लिश ड्यूरिंग स्पेंसर्स लाइफ टाइम? स्पेंसर के लाइफ टाइम में कितने बुक्स पब्लिश हुए थे? 6. उन्होंने प्लान जरूर 12 किया था, लेकिन एक्चुअल पब्लिश्ड बुक वेर 6. व्हाट पोएटिक फॉर्म इज अ फेरी क्वीन रिटर्न इन? कौन से जो फॉर्म है, पोएटिक फॉर्म है फेरी क्वीन को लिखा गया किस पोएटिक फॉर्म में? And we all know it is not sonnet, it is not ottava rima, it is not heroic couplet, it is Spenserian stanza. Okay, so the question, which is like very important question, how many lines are there in a Spenserian stanza? एक Spenserian stanza में कितने line होते हैं? It is 8 plus 1 which is equal to 9. ठीक है, तो Spenserian stanza में 9 lines होते हैं. The rhyme scheme of a Spenserian stanza is, rhyme scheme क्या है Spenserian stanza का? AB, AB, BC, BC, and the last is Alexandrian, which is C. ठीक है, so it is option number C. AB, AB, BC, BC, C. Okay. Who is the hero of book 1 of the Fairy Queen? Hero कौन है book 1 का? And we all know it is a Red Cross Knight. ये ना सारे जो books हैं उसमें कोई किसी ना किसी चीज को जरूर रिप्रेजेंट करता है. आप बिल्कुल देखिएगा कि जो रेड क्रॉस नाइट है वो कौन से वर्च्यू को जो है पोर्ट्रे करता है. ओके, सो हु इज द हीरो ऑफ बुक 1 ऑफ द फेरी क्वीन? इट इज द रेड क्रॉस नाइट. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which virtue is represented in book 1 of the Fairy Queen? कौन सा book 1 में कौन सा virtue represent किया गया? अभी हमने बात की है, जो virtue represented है वो है holiness. Okay. Next question. Dwesa symbolizes. Dwesa किस चीज को सिंबलाइज करती है? क्वीन एलिजाबेथ को सिंबलाइज करती है, फॉल्सहुड एंड कैथोलिसिज्म को सिंबलाइज करती है, ट्रूथ को करती है, या हॉलीनेस को करती है? इट इज फॉल्सहुड एंड कैथोलिसिज्म. ओके. Who rescues the Red Cross Knight from the giant Orgoglio? तो ऑर्गोग्लियो से जो है रेड क्रॉस नाइट
किसको, मतलब हु रेस्क्यूज द रेड क्रॉस, कौन बचाता है रेड क्रॉस नाइट को जो जाइंट ऑर्गोग्लियो उसके उनके हाथों से, दैट इज प्रिंस आर्थर. ओके, द हीरो द प्रिंस आर्थर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेरी क्वीन ग्लोरियाना रिप्रेजेंट, ग्लोरियाना जो कैरेक्टर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? तो वो खुद क्वीन क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट को जो है ग्लोरियाना रिप्रेजेंट कर रही है. सो देर आर मेनी लाइक ऑप्शंस विच इज बेसिकली पेगन डीटी को रिप्रेजेंट कर रही है, या फिर क्रिश्चियन आइडियल को, या फिर फेरी क्वीन है फॉकलोर से उसको. सो यू हैव टू रिमेंबर ग्लोरियाना जो है रिप्रेजेंट कर रही है क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट को. बुक टू ऑफ द फेरी क्वींस डील विद द वर्च्यू ऑफ, जो बुक टू है फेरी क्वीन की वो किस वर्च्यू से डील करती है? वो टेम्परेंस. ओके, सो द बुक जो है बुक टू जो है वो टेम्परेंस से जो है डील करती है. हु इज द नाइट ऑफ टेम्परेंस, कौन है जिसको टेम्परेंस का जो वर्च्यू है उसके इक्वालेंट रखा गया है? दैट इज सर गयोन. ओके, सर गयोन इज द नाइट ऑफ टेम्परेंस इन बुक टू. Next question, who is the female warrior in the fairy queen that represents chastity? Chastity को कौन represent करते हैं? And also you should remember that ये एक female warrior है. Was it Una? Was it Britomart, Duessa or Florimel? So we all know that Britomart is the one who represents chastity. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंस आर्थर इन द फेरी क्वीन सिंबलाइजेस, जो प्रिंस आर्थर है वो फेरी क्वीन में किस चीज को सिंबलाइज करते हैं? इज इट हॉलीनेस, इज इट द आइडल जेंटलमैन, द प्रोटेस्टेंट चर्च और द मैग्निफिसेंस? मैग्निफिसेंस क्या होता है? बहुत बढ़िया तरीके से जो होता है ग्रैंड. ओके, सो प्रिंस आर्थर जो है वो सिंबलाइज करते हैं मैग्निफिसेंस को. What is the name of the magician who deceives Red Cross? वो magician कौन है जो रेड क्रॉस को धोखा देता है? इज इट आर्किमागो, इज इट मर्लिन, इज इट एग्रिपा और प्रॉस्पेरो? ओके, प्रॉस्पेरो मतलब बहुत सारे नाम है जो एक्चुअली इसमें मेंशन भी नहीं है. सो जो मैजिशियन जो डिसीव करता है रेड क्रॉस को उसका नाम है आर्किमागो. ओके, विच मॉन्स्टर रिप्रेजेंट्स रोमन कैथलिज्म इन बुक वन? कौन सी मॉन्स्टर है जो रोमन कैथलिज्म बुक वन में रिप्रेजेंट करती है? और गिग्लू है, ड्रैगन है, मैमन है, या फिर इन सब में गलती है? एक्चुअली ये जो रिप्रेजेंट करती है वो है डुएसा. सो इट्स एरर, इट्स नॉट द करेक्ट आंसर. ओके, विच ऑफ दिस इज नॉट रिटन बाय स्पेंसर? ऐसा कौन सा वर्क है जो स्पेंसर ने नहीं लिखा? इज इट शेपर्ड्स कैलेंडर, इज इट एपिथैल्मियन, इज इट एमराटी और एस्ट्रोफिल एंड स्टेला? इट इज, of course, it is Astrophil and Stella, which is written by Sir Philip Sidney. Okay. Spencer's Amorati is a sequence of, जो Amorati है वो किस चीज का सीक्वेंस है? ये sonnets का सीक्वेंस है जो Amorati है. ओके, जो स्पेंसर्स का Amorati है वो किसके बारे में, क्या सब्जेक्ट क्या है इसका? तो वो उनकी वाइफ है एलिजाबेथ बॉयल, उनके बारे में है जो स्पेंसर्स Amorati है. Okay, so it is not Elizabeth the First, it is not Rosalind, it is not Lady Penelope, it is Elizabeth Boyle. In the Shepherdess calendar, how many eclogues are there? कितने eclogues है Shepherdess calendar में? 12. 12 eclogues are there. Okay, so I hope you understood all the questions really well. Go revise the first part of the questions as well. It is very important. So Edmund Spencer 1 and 2 you should be revising. So have a great day.